1124th episode of नागपुर's most happening Facebook live शो का नाम है राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ। पारेख ब्रदर जूलर्स अपनी सेकेंड एनिवर्सरी मना रहा है और ज्वेलरी मेकिंग पे डिस्काउंट भी दे रहा है। अगर आप इस वक्त ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ज्वेलरी खरीदना क्यों जरूरी है, सोना खरीदना क्यों जरूरी है, तो मैं आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में सोने के भाव और बढ़ने वाले हैं। तो आप कृपया अभी से, क्योंकि गोल्ड इज द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट, है ना, तो इन्वेस्ट कीजिए इन गोल्ड एंड आइए एट पारेख ब्रदर जूलर्स न्यू शोरूम सेलिब्रेटिंग सेकेंड एनिवर्सरी एट नियर बजाज नगर। या अगर आपने टॉपसी टर्वी के बारे में आपने सुना है तो आपने सही सुना है, टॉपसी टर्वी के बिल्कुल नीचे है पारेख ब्रदर जूलर्स प्रेजेंटिंग विमेन ऑफ द ईयर in association with Pehnava Boutique. A big thank you to Stylix Kitchens and Wardrobes. Can't forget to thank V Herbs and Four Seasons, a store of home furnishing, and also V Glow with Vasudha Agrawal. मेरी आज की जो मेहमान है वो शी इज ऑल्सो इन टू ज्वेलरी डिजाइनिंग एंड शी हैज लिव्ड इन अ सिटी आई हैव लव्ड एंड लिव्ड वंस अपॉन अ टाइम एंड दैट्स पुणे। चलिए मुलाकात करते हैं विद माय विमेन ऑफ द ईयर। प्लीज वेलकम माय गेस्ट टुडे पायल गंडेचा। हेलो मैम, कैसी हैं आप? आई एम फाइन सर। फाइन। तो सबसे पहले हम बात करें अमरावती की। जी। हनुमान व्यायाम परिषद मंडल, पता है कि नहीं पता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, उससे कौन नहीं जानता। मेरा बहुत सारा वक्त अमरावती में गया है। मैं बात कर रहा हूँ 1996-97 की। तब आप क्या कर रही थी? मैं स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। हम स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। चलिए बताइए अपने जीवन के बारे में थोड़ा। सर, आई एम born and brought up in Amravati, and I have done my BCA. I've also completed my ethical hacking course, and then after I started working with Reliance Web Store as a team lead, and then after I shifted to Pune because 80% of the people love Pune. Okay. So even I you also went to Pune. Yeah, I also went to Pune, and even I wanted to make my career. So I joined Zensar Technologies. जी. And then after I worked with Wipro as well. Wipro, yes. Okay. And तो Wipro BPO में या Wipro software? Yeah, I was in a Wipro BPO. Okay, ठीक है. And then after you work with Zensar also? Yeah, I worked with Zensar as well. क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या सीखने को मिला है वहाँ पे? Sir, my experience was wonderful, and met many of the people, faced many ups and downs as well. जी. Good promotions, good life, everything. Good friends? Good friends, of course. Okay. And then after मेरी मैरिज हो गई जी, and I came to Nagpur, and it's an arranged marriage. Yeah, it's a typically arranged marriage, and in an orthodox family. Okay. So there was a drastic change in my life, and in me as well. So things change automatically, and the dream where I wanted to be, what a person I wanted to be, it was difficult for me to go through that. जी. बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आप करना चाहते होंगे, लेकिन जी रिश्ते निभाना ज्यादा जरूरी है। हाँ, वो ज्यादा जरूरी था। जी. आज के समय में तो इतना मतलब सब कुछ फ्री हो गया है, बट उस समय इतना नहीं था। जी. तो धीरे धीरे फिर भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते गए, और फिर भी ऐसा था कि आई डिडंट लूज माई होप। जी. Like it says that age doesn't matter, numbers doesn't matter. जी. So I was trying my level best. I gave many of the interviews in Nagpur also. Well, today Nagpur is also well developed. जी. And many companies are here as well. जी. So, but still, again, there are some circumstances we have to face, like family or children, and much more. बच्चे भी आपके? जी, I have one daughter. Okay. She is very beautiful, very cute, a 13 years old daughter. And my husband is very, very supportive. So
Still after so many years, I lost my confidence, but my husband supported me a lot जी and was with me in each and every phase of life. राइट. I would like to give a lot of credit to him. नाम ही बता दीजिए उनका. जी, his name is Harish Gandecha, most lovable and most caring husband. And yeah, after this, some near about 5 to 6 years ago, I still tried for my ethical hacking. Right. And but it says that ethical hacking is really very difficult. Absolutely. So And it's after all so about many practice. years, It's yeah, also practice. it needs within microsecond we face changes. Absolutely. And we have to study a lot. So it was very difficult. Still, I tried, but couldn't succeed in that. And simultaneously, I was working in this jewelry profession also, because from childhood I love to make jewelries and all those stuffs, and show my creativity to all. Somewhere I purchase also. People love to purchase my jewelry in exhibitions. They wait for a year to कि आप एग्जीबिशन कब लगाएंगी और वो खरीदेंगे. कब वो खरीदेंगे. And they love the quality I serve to them, and I believe that quality should be the best which I give to my customers. And तो जो आप कर रही हैं वो आप एंजॉय कर रही हैं. जी बिल्कुल बिल्कुल एंजॉय कर रही हूँ, और चाहती हूँ कि मैं ऐसे एंटिक ज्वेलरीज लेकर आऊँ जो हर किसी की चॉइस हो. अच्छा. ये मैं चाहती हूँ. अब जॉब करना तो अभी पॉसिबल नहीं है, फिर भी अगर मुझे अगर चांस मिला इस फील्ड में, जैसे आईटी फील्ड में मुझे, तो अभी भी मैं अपनी एज को ना देखते हुए बिल्कुल जाऊंगी. और लेकिन आईटी कंपनी क्यों वापस इसको आप परस्यू नहीं करना चाहती? नहीं सर, ऐसा नहीं है. एक रहता है कि अब इतने साल बाद वो स्टडी करना, वो सब चीजें करना पॉसिबल नहीं होता है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट. और उसके अलावा भी बहुत सी सिचुएशंस होती है. मोस्ट ऑफ द 80% लेडीज ये चीजें फेस करती है. जी. सो डिड आई. सो ऐसा होता है कि कोशिश अपने हाथ में है. होप अभी भी मैं लूज नहीं की हूँ. और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. बिल्कुल. और आज मुझे यहाँ भी आने का मौका मिला है, तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिमाबेन राजा दैट शी इज स्ट्राइविंग रियली हार्ड फॉर वुमेन who are working. लोहाना समाज की ये जो पूरी की पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जी, महिलाओं के लिए, जी. जो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करता है, सपोर्ट करता है जी. आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है उसका? सर बहुत ही अच्छा कितने एक्सपीरियंस. सालों से जुड़ी हैं? सर अभी मैं 3 से 4 साल हो गए हैं इनसे जुड़ी हूँ. लेकिन मैंने एक चीज देखी है कि वुमेन्स अभी भी कतराती है बाहर निकलने के लिए. लेकिन कैसा है, जनरेशन चेंज होती जा रही है, तो बच्चे भी काफी प्रमोट कर रहे हैं पेरेंट्स को. बिल्कुल हर एक वुमेन को इंडिपेंडेंट होना चाहिए और घर से बाहर निकलना चाहिए. और हिमाबेन राजा इज रियली अ ग्रेट पर्सनालिटी. She at this age she's striving really very hard to promote each and every woman that get out of your house, like she did. She called me as I lost my confidence after so many years. I'm in front of you just because of her. She encouraged me a lot, and she's encouraging each and every woman of our community. तो आपके हस्बैंड इंजीनियर हैं? जी है ना. और आपने आईटी कंपनीज में काम करके यू ऑल्सो बिकम आईटी प्रोफेशनल. कभी आप दोनों ने बैठ के सोचा एक ज्वेलरी स्टोर खोला जाए? सर मैंने सोचा तो है, इनफैक्ट मैंने ट्राई भी किया था जस्ट फॉर 6 to 8 months, बट मुझे इतना मजा नहीं आया. जी. एक्चुअली कैसा होता है कि वो एक सिर्फ अर्निंग टाइप का हो जा रहा है. लेकिन यहाँ जो एग्जीबिशंस में जब मैं स्टॉल लगाती हूँ, तो हर एक पर्सन से मेरी मुलाकात होती है. सभी की मुझे चॉइसेस पता चलती है. आई वर्क अकॉर्डिंगली, एंड बहुत सारी क्रिएटिविटी मन में आती है. बहुत सारे अदर ज्वेलरीज वाले भी रहते हैं, जिससे मुझे काफी कुछ जानने मिलता है, सीखने मिलता है, नया पता चलता है. सो वो वहाँ मुझे बहुत मजा आता है काम करने में. तो आगे भी मैं चाहूंगी कि उसी फील्ड में मैं रहूं, और साइमल्टेनियसली अगर यहाँ पे भी मुझे अगर कुछ चांस मिलता है तो मैं वो भी करूं. ये जो कॉन्फिडेंस गिरा जी, इसके बारे में अगर हम बात करें जी, तो ये कॉन्फिडेंस गिरने के पीछे की जो अहम वजह है, क्या वो ये है कि आप जो करना चाहती थी वो करने के लिए आपको मौका नहीं मिला, या फिर आपने खुद कहीं ना कहीं अपने आप को बांध दिया था कि अब मुझे ऐसे ही रहना है, ऐसे ही जीना है? नहीं सर, ये तो मेरे साथ कभी हो नहीं सकता कि मुझे ऐसे ही जीना है या मैं ऐसे ही रहूंगी.
मेरी शादी हुई थी ऑर्थोडॉक्स फैमिली में, सो और वो नेचुरल है कि जो पहले की जनरेशन होती थी, पहले के जो मम्मी पापा होते थे, उन लोगों ने ये लाइफस्टाइल और ये सब चीज़ें देखी नहीं है जी। तो उनकी तरफ से देखा जाए तो दे आर माई फैमिली इज अ वेरी गुड फैमिली, बट होता है कि उन्होंने कभी ये सिचुएशंस देखी नहीं है या ऐसा माहौल, ये एक्सपोजर नहीं देखा है, सो वो अपने हिसाब से मुझे ढालना चाहते थे और मेरी जो पर्सनल चॉइस थी या मेरा जो अटेंशन था वो दूसरी जगह था जी। तो वो होता है, लेकिन एक मुझ में था कि नहीं कुछ देर बाद हो जाएगा, चेंजेस आ जाएंगे, उसको समय लगता है, चाहे कोई भी लेडी हो, अगर जाते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, थोड़ा टाइम लगता है, टफ टाइम्स आते हैं, फेस करना पड़ता है जी। लेकिन कुछ साल बाद इट वाज ऑल ओके, बट स्टिल रहता है कुछ ना कुछ तो सपना क्या है, करना क्या है, बनना क्या है, बनना क्या है और वो कहाँ तक ले जाना है? सर मुझे तो बहुत दूर तक जाना है और जहाँ तक होगा मैं बिल्कुल जाऊंगी। अभी हाँ, अभी देखते हैं कि क्या क्या और लाइफ दिखाती है और क्या क्या हम कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में चीजें लिखी हुई हैं, प्रेप्ट ऑलरेडी ऊपर वाले ने डिसाइड कर लिया, या फिर बहुत सारी चीजें हम खुद भी लिखते हैं? जब कैसा है कि 30% लिखी हुई होती है, 30% अपने हाथ में होती है और रिमेनिंग 40% जो है एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, ये मैं मानती हूँ। अच्छा, ये बताइए ये किसने बताया आपको और ये क्या थॉट है? ये मेरे दिल की बात है। हाँ, मैं कुछ भी प्रिपेयर करके नहीं आई हूँ, नहीं, जो बोल रही हूँ सब दिल से बोल रही हूँ। बिल्कुल। बताइए ये थॉट कहाँ से आया? लेकिन ये पता नहीं सर, लेकिन ये मतलब मुझे ऐसा लगता है ये जो एनवायरनमेंट वाली बात आपने बोली, ये एनवायरनमेंट वाली बात मतलब क्या, मतलब हमारे आसपास के लोग, हमारे आसपास का वातावरण कैसा? जैसे आसपास का वातावरण तो इतना अफेक्ट नहीं करता है, हमारा खुद का घर, हमारे खुद के फैमिली के लोग, उनका सपोर्ट, यही है जो एनवायरनमेंट जो मैटर करता है जी। है ना, किसका सपोर्ट हमें कितना मिल रहा है, किसका कैसा नेचर है, उस पर भी डिपेंड करता है और उसमें हमारा भी उतना ही ये रहता है कि हम लोग कितना उसको क्या कहते हैं, उसको किस तरह से लेते हैं या किस तरह से अंडरस्टैंडिंग कैसी है, अंडरस्टैंडिंग करते हैं या फिर उसको। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, कभी किसी ने आपकी बुराई की और आपको पता चल गया कि उसने मेरी बुराई की, ऐसा कभी हुआ है? सर होता रहता है, हर कोई हर सभी का नजरिया अलग अलग होता है, कोई अच्छा बोलेगा, कोई बुरा बोलेगा, वो इट डजंट माइंड। अगर हम वो लेकर के बैठ जाएंगे तो हम लाइफ में कभी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो मतलब आगे बढ़ते रहना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, तो आगे जाके मतलब हम उम्मीद करें कि आपको जिस दिन कोई बड़ी कंपनी बुला लेगी, आईटी कंपनी, आप वहां चले जाएंगे। बिल्कुल जाऊंगी सर, मैं बिल्कुल जाऊंगी। चलिए, उम्मीद है कि ये इंटरव्यू जो है ये आईटी कंपनीज के ओनर्स को भी मैं शेयर करूं कि ऐसी एक हमारी एस्पिरेंट है नागपुर में जो काम करना चाहती है आईटी कंपनी के लिए। ओके, एक ऐसी ये मेरा आखिरी सवाल होगा जी कि अगर जिंदगी की सुनहरी किताब लिखी गई, उस किताब के सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा गया, पायल गंडेचा, उसके नीचे क्या ऐसा लिखा रहना चाहिए जिससे पढ़ने के बाद लोग आपको हमेशा याद करें? अ ट्रू इंस्पिरेशन। ट्रू इंस्पिरेशन, राइट। ओके, तो जब वो ये पढ़ें तो वो आपसे इंस्पायर हो। बिल्कुल। मैम, ये जो शब्द है ना, ये वही बोल पाता है जो मुझे ऐसा लगता है कि अपने जीवन में या अपने काम में बहुत ज़्यादा समर्पित होता है जी। और आपसे बात करके जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ वो ये कर पा रहा हूँ कि भले ही 15 साल लग गए, देखिए 14 साल का वनवास तो भगवान श्री राम ने भी है ना तय किया था, आपने 15 साल का तय किया, लेकिन वो जो 15 साल आपने तय किए उसमें आपने ऐसी भी बहुत सारी चीजें सीखी होंगी जो आपको आज काम आएगी या आगे काम आएगी, और आपकी जैसी यंग एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो और भी लड़कियों को इंस्पायर करेंगी और उनके लिए ये लाइन जो है ये परफेक्ट बैठेगा, दैट पायल गंडेचा इज अ ट्रू इंस्पिरेशन। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। पायल गंडेचा से बात हुई, मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात। किसी के लिए इंस्पिरेशन बनना मुझे ऐसा लगता है कि ये डिफिकल्ट नहीं है। लोग कहते हैं क्या कह रहे हो यार, ये बहुत डिफिकल्ट है। देखिए, डिफिकल्ट तब है जब जो उस इंस्पिरेशन का जो हकदार है या जो इंस्पिरेशन बन रहा है वो अपनी जर्नी को कितना एंजॉय कर रहा है। अगर आप अपने काम को अपने सर पे बैठा लेंगे तो आपका सर में दर्द शुरू हो जाएगा और एक दिन आप उस काम से भागना चाहेंगे,
लेकिन अगर वही काम आप अपने दिल में लेके चलें और आप उसे एंजॉय करें तो फिर लोग आपको देखते हैं कि अरे ये तो एंजॉय कर रहा है या एंजॉय कर रही है और ये आगे बढ़ रहा है या आगे बढ़ रही है, तो फिर कहीं ना कहीं लगता है कि वाकई में ये एक इंस्पिरेशन का माध्यम है। 15 साल लग गए पायल गंडेचा को अपना वो बैरियर पार करने में, जहाँ पर आज वो फिर अच्छा काम कर रही हैं, आज आगे बढ़ रही हैं और मन में कई सारे सपने लेकर चल रही हैं। उनके सपने पूरे होंगे या नहीं, इसका जवाब जो है वो जवाब है हाँ, होंगे, क्योंकि वो मेहनत करना जानती हैं, वो अपने आप को समर्पित रखना जानती हैं और उनके पीछे उनका परिवार खड़ा है। उम्मीद है कि जो महिलाएं अब तक काम नहीं कर रही हैं या अभी भी वो बैरियर में अटकी हैं, तो पहले ना अपने परिवार को मना लीजिए, थोड़ा सा कन्विंस कर लीजिए। उम्मीद है कि वो समझ जाएंगे, या उनको ये इंटरव्यू दिखा दीजिए। हाँ, सबसे आसान, उनको ये इंटरव्यू दिखा दीजिए और ये इंटरव्यू देखने के बाद भी अगर वो आपको रोकना चाहें तो ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज और हैं जो आप उनको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि शेयर करती रहेंगी, वो देखते रहेंगे और वो उनको भी मन में कहीं ना कहीं लगता रहेगा कि हमें भी अपनी घर की बहू को एक मौका ज़रूर देना चाहिए। याद रखिए, महिलाएं हैं तो हम हैं और हम हैं तो ये दुनिया। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात, तब तक जिंदा रहें। जय हिंद।